In part 1, you saw what daily life looks like inside this engine room. Worn out, noisy, and pushed to its limits. 18 years at sea, thousands of running hours, and the system that are still holding on. But that was only the surface. Because an engine room doesn't give up its truth easily. In part 2, we go deeper into tight spaces, unseen systems, constant heat, and the kind of work that doesn't stop when the camera is off. This is not just machinery. This is endurance. This is survival at sea. Welcome back. Let's come back to the topic. ये है इलेक्ट्रिकल स्टोर. ये क्या है? अब इलेक्ट्रिकल स्टोर तो भाई पूरा का पूरा मैस्ड अप है. What should I say now? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो. ये है इलेक्ट्रिकल स्टोर. यहाँ पे ETO है, so he is responsible for this place. Then we have opened some certain machinery for overhauling. मेन इंजन का एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन करके रखा हुआ होगा और स्पेयर में भी कुछ रखा हुआ है. अभी हम लोग नीचे जाएंगे. ये देख रहे आप, ये मेन इंजन का लाइनर है, स्टेयर. ये पूरा नया ब्रांड न्यू है डन. अब जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे आओगे, ये है मेन इंजन. छोटा इंजन है, ज़्यादा बड़ा इंजन नहीं है. 6S50 MCC. ये ऑलमोस्ट 10,000 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता है. This is the main engine of the ship. It produces around 10,000 brake horsepower. To put that into perspective, an average car on the road produces around 120 to 150 horsepower. So this single engine is doing the work of nearly 70 to 80 cars, running together non-stop, day and night, in heat, vibration and rough seas. And unlike cars, this engine doesn't get to stop at traffic signal. If this stops, the ship stops. That is the kind of responsibility this machine carries. Now comes the moment you run down. आप लोगों को मैं अपनी बेबी से मिलवाता हूँ सबसे पहले. तो ये आपको देखते हैं 2 लाइनर. ये मेन इंजन के लाइनर है. एंड देन वी हैव डेडिकेटेड स्पेस फॉर जनरेटर्स. यस, यू गाइस हर्ड इट राइट. तो दिस इज नंबर 1 जनरेटर एंड दिस इज नंबर 2 जनरेटर. जो दोनों जनरेटर भी चल रहे हैं, जिसके नाम नहीं चल रहा है, तो देखो मैं जनरेटर से ना. So this is one of the generators of an 18-year-old ship, and right in front of me is the local control panel. From scavenger pressure to the fuel pressure, every critical parameter can be monitored right here. And this becomes extremely important when you are taking rounds, because you don't always have the luxury of running to the control room. Now breakdowns on an old ship are normal. I have faced quite a few during my tenure, and that's exactly why when you join an older vessel, you need to be prepared both mentally and physically. This generator room is also designed differently. Since there is no drip tray under the generator, instead the generator is installed directly above the bilge. So if there is any oil spill for any reason, everything goes straight into the bilge. And trust me, that makes cleaning and maintenance a big challenge. सेम है. तो दे हैव गिवन सेपरेट रूम फॉर जनरेटर. तो हम लोग जब काम करेंगे तो मेन इंजन की आवाज़ नहीं आएगी. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. तो देखो नंबर 3 भी ये रहा. एकदम नए ब्रांड न्यू जनरेटर है भाई. 18 साल पुराना शिप है, बट हमारे जो मोटरमैन लोग हैं, दे हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल. तो ये है मेन एयर कंप्रेसर. तो मेन इंजन को चलाने के लिए हमें कुछ कंप्रेस एयर की ज़रूरत पड़ती है. वो हम लोग इस मेन एयर कंप्रेसर से जनरेट करते हैं. वहाँ पे 2 बॉटल दिख रहे होंगे, मेन एयर बॉटल 1, मेन एयर बॉटल 2. सो इसके अंदर हम वो कंप्रेस एयर को स्टोर करते हैं एंड वी प्रेशराइज दिस बॉटल अप टू 30 बार. तो 30 बार तक का प्रेशर अगर हमारे पास है, देन वी कैन स्टार्ट एंड स्टॉप मेन इंजन एंड जनरेटर भी. इनफैक्ट हम लोग को स्टार्ट करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हमें कंप्रेस एयर की ज़रूरत पड़ती है. तो वो हम लोग इन 2 कंप्रेसर से करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है. ये नंबर 1 नंबर 2 जनरेटर दोनों के पैनल है. यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं. दोनों अभी ऑटो मोड में है. तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ. ये है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर. इन केस अगर ये दोनों मान लो ब्लैकआउट हो गया,
So we have one more compressor through which we can start generator. मेन इंजन में जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी बॉटल दिया हुआ है, देख रहे हो ये छोटा सा बॉटल. देन वी हैव स्पेयर्स है, या जनरेटर के स्पेयर्स है, ये जनरेटर के बेसिकली पिस्टन है. तो और ये लाइनर है, यहाँ पे रखे हुए अब जगह है नहीं तो इसी पे मैनेज करना पड़ रहा है. तो अभी आप आगे जाओगे थोड़ा और तो देन वी हैव लूबल कूलर. मेन इंजन का लूबल कूलर पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अलग से लूबल कूलर दिया हुआ है. बहुत बड़ा है भाई, मेरी हाइट से बहुत बड़ा है. देन वी हैव लूबल कूलर का फिल्टर. मेन इंजन लूबल के लिए एक फ़िल्टर दिया हुआ है, एक बैक वॉश दिया और एक बाईपास दिया. क्लीनिंग कर रहा है वी कैन यूज दिस बाईपास. तो हर चीज़ का एक रिडंडेंसी दिया हुआ है, बैकअप प्लान दिया हुआ है. ये शिप की बहुत अच्छी बात है. देन कम्स द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एंटायर इंजन रूम विच इज़ फ्रेश वाटर जनरेटर. यस गाइस, यू गाइस ऑलरेडी ट्राइड. इसके लिए बहुत मैं एक्साइटेड रहता हूँ. सोचो हम लोग सी वाटर से फ्रेश वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट टू 16 टन्स पर डे, विच इज इक्वल टू 16,000 लीटर्स इन अ डे. दुगना पानी जनरेट करता है ये, एकदम रॉ फ्रेश पानी जनरेट करता है. देखो ये पानी कितना फ्रेश जनरेट कर रहा है. ये आप यहीं से डायरेक्टली पानी लेकर पी सकते हो भाई. ये हमारा फ्रेश वाटर जनरेटर है. ये सिर्फ इस पैरामीटर्स है जो कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे जनरेटर को देख लो. दैन इसके साइड में एचटी पम्प्स हैं. ये मेन इंजन के एचटी पम्प्स हैं. मेन इंजन के लाइनर के आसपास हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसके लिए ये दोनों पम्प्स रिस्पॉन्सिबल हैं. दैन वी हैव एलटी पम्प्स. इस शिप पे 3 एलटी पम्प्स हैं, 1, 2 and 3. दैन वी हैव हीटर फॉर मेन इंजन. इन केस जैसे ही हम लोग पोर्ट पे आ जाते हैं तो हम लोग बॉयलर के साथ साथ हम लोग हीटर यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ बैकअप प्लान फॉर दैट एज वेल कि अगर आपको बॉयलर पे काम करना है तो यू कैन यूज हीटर इंस्टेड ऑफ बॉयलर्स. तो ये है हीटिंग एरिया फॉर सेम लाइनर का एरिया का जो पानी होता है उसको हीट करने के लिए स्टीम के थ्रू कर सकते हो आप. तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा और आगे तो हमको मिलेगा प्यूरीफायर रूम. यस, ये है प्यूरीफायर रूम. प्यूरीफायर रूम देख रहे हो आप. कभी ये मेरा हुआ करता था बट अभी के लिए भाई ये 4 इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्यूरीफायर देखो कितने हैं. 18 साल पुराना शिप है बट दे हैव गॉट 6 फकिंग प्यूरीफायर्स. मतलब ये फ्यूल प्यूरीफायर नंबर 2, तो दिस इज फ्यूल प्यूरीफायर नंबर 1. ये डीजल ऑयल प्यूरीफायर है, ये भी वर्किंग है भाई. देन वी हैव लूबल प्यूरीफायर्स नंबर 1, नंबर 2 एंड देन दैट इज़ द थर्ड वन. तो इनमें से एक जो है जनरेटर के लिए और 2 जो है वो है मेन इंजन के लिए. अब सोचो, आप कैन यू गाइस इमेजिन. और वो उसके पैनल दिख रहे हैं आपको, सब लूबल प्यूरीफायर 1, 2 एंड देन वो के लूबल प्यूरीफायर लिखा हुआ है. सो या दिस इज द प्यूरीफायर रूम. मजा आया. विच लुक्स प्रिटी नाइस. तो एकदम साफ सुथरा भाई. कैन यू गाइस इमेजिन. तो आप बोल सकता है कि 18 साल पुराने शिप का ये प्यूरीफायर रूम है, एकदम नीट एंड क्लीन विदाउट एनी लीकेज. ओके, अब हम लोग आगे जाएंगे. ये है हीटर रूम. अब हीटर रूम एंटर करके आपको दिखेगा एक और पैनल जहाँ पे मेन इंजन के पंप्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सर्कुलेटिंग पंप, सप्लाई पंप जो कि फ्यूल सप्लाई करते हैं मेन इंजन को, तो वो उसका पैनल है बेसिकली ये. देन वी आर मेन इंजन का जो फ्यूल है बिफोर एंटरिंग मेन इंजन वो एक फिल्टर के पास होकर जाता है. तो दीज आर नोन एज बैक वॉश फिल्टर्स. तो ये पूरा का पूरा एरिया मेन इंजन को डेडिकेटेड है. फ्यूल को अगर हमको हीट करना है यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर देन वी हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक हीटर फॉर दैट एज वेल. देन यहाँ पे आपको 2 पंप दिख रहे होंगे. दीज आर फॉर बॉयलर फ्यूल ऑयल पंप. तो बॉयलर को अगर फायर करना है तो हम लोग को ये 2 पंप में से कोई भी चलाकर ये बेसिकली 20 बार से का प्रेशर जनरेट करता है. तो बॉयलर इसी के थ्रू, इन पंप्स के थ्रू ही सब फ्यूल जाता है बॉयलर को. देन वी हैव सम मोर टैंक्स. ये सारे बंकर टैंक्स के ही पार्ट है. इनफैक्ट ये सर्विस टैंक्स है. इससे प्यूरीफायर में पहले सेटलिंग टैंक से सक्शन लेगा. देखो सेटलिंग टैंक दिख रहा है. प्यूरीफायर पहले इसमें सक्शन लेगा, देन क्लीनिंग करके वो सर्विस टैंक्स पे जाएगा. तो ये दोनों सर्विस टैंक्स हैं. अब यहाँ के बाद इन दोनों पंप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनरेटर और मेन इंजन तक पहुँचाते हैं. ये सप्लाई पंप है और वो सर्कुलेटिंग पंप्स है. मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. अगर डिटेल में जानना होगा देन यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ये है डीओ सर्विस टैंक. तो इंस्टेड सो व्हेन वी आर नॉट यूजिंग LSFO जो इनके अंदर है, हम लोग डीओ को यूज़ करना है तो उसका सर्विस टैंक है. उसका बंकर टैंक भी अलग से है. दिस इज 2 पोर्ट. ये पहले LSFO टैंक था जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके डीजल टैंक बना दिया है सो दैट वी कैन टेक मोर बंकर ऑफ डीजल. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो शिप है 90% ऑफ द टाइम ये शिप डीजल में चलता है. बहुत कम है जो LSFO यूज़ करते हैं हम लोग.
सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे बहुत सारे बंकर टैंक्स को कन्वर्ट कर दिया गया है डीजल टैंक्स के अंदर। तो अभी ये डीओ सर्विस टैंक दिख रहा है आप लोगों को, ये है, यहाँ से आप बॉयलर को सप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आप मेन इंजन को सप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आप जनरेटर को भी सप्लाई कर सकते हो। एक छोटा सा टैंक, बट इससे सारी मशीनरी चल सकती है। ऑल राइट, अभी हम आगे जाएंगे और तो ये दिख रहा है आपको, ये है मेरा एरिया। ये कैस्केड टैंक है, बॉयलर के अंदर जो पानी है यहीं से जाता है, फिर वो बाद में स्टीम में कन्वर्ट होता है। कितना क्लीन पानी दिख रहा है आपको? नहीं, एकदम रॉ पानी क्लीन है भाई, और इसके ये केमिकल डोजिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा रखना नहीं चाहिए। देन वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको समझ में आ रहा होगा, जितना भी अकोमोडेशन में गैली में यूज़ होता है पानी, सारा इसके थ्रू पास होकर फिर ओवरफुल जाता है। बट 90% टाइम जो शिप जो है हमारा कोस्टल एरिया में सेल करता है, तो हम लोग ओवरबोर्ड नहीं करते, आप फिर टाइम डालते हैं। When we are away from land, I think 12-14 nautical miles पे, उसके बाद हम लोग ओवरबोर्ड करते हैं। हर एक कंट्री का एक अलग लीगल रेगुलेशन, तो यू फॉलो दैट। इसकी जगह पे तो आप ओवरबोर्ड भी नहीं कर सकते, तो भी आप टेक केयर ऑफ दैट बिफोर डिस्चार्जिंग किसी को। एनीवेज, अभी ये देख लो 2 पैनल और है, ये ब्लोअर है, मेन इंजन का ब्लोअर के पैनल है। अभी हम लोग जाएंगे सबसे नीचे प्लेटफॉर्म पे, और वो है अपना मेन इंजन का प्लेटफॉर्म। ये है मेन इंजन का मैनुअरिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जब भी अंडर सिस्टम होती है स्पीकिंग होता है नहीं। और ये है मेन इंजन का सिलेंडर ऑयल का पंप्स, ये ऑटो में चलते हैं, बस दिख रहा होगा मैनुअल। मूविंग ऑन, ये है सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म इस शिप का। ये हमारा मेन इंजन है, देखिए आप, इतना बड़ा है भाई, मतलब 6 सी है। इतने सारे क्राइंगल डोर्स हैं। मैंने आप लोगों को दिखा दिया एक फुल व्यू। एक बार और देख लो आपको, ये फॉरवर्ड एरिया है मेन इंजन का। ये देखो आप, ये फॉरवर्ड एरिया मेन इंजन का। और जो नॉर्मली जो जितने भी इंजन उनके पंप्स रहते हैं हर शिप पे स्लिप रहते हैं, वो सारे बॉटम प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। मैंने अभी तक पे सारे बॉटम प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। ये HFO ट्रांसफर पंप है। अगर हम लोगों को बंकर टैंक से सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर करना है, या फिर किसी एक बंकर टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर करना है फ्यूल, देन यू हैव टू यूज दिस पंप। अगर आपको सेम डीओ करना है, देन यू हैव टू यूज दिस पंप। देन वी हैव स्लज पंप, जितना भी वेस्ट पंप, वेस्ट ऑयल है, वो सारा हम लोग स्लज पंप से ट्रांसफर करके इन्सिलेटर में डालते हैं। देन वी हैव डेक सील पंप्स। इसके बाद आप जाओगे तो LT के कूलर हैं 1 और 2, ये दोनों के दोनों रनिंग मूड में है। देन वी हैव मेन ब्रूसी वाटर पंप, मेन ब्रूसी वाटर पंप 1, 2, दैट इज द थर्ड वन। और ये है फ्रेश वाटर तरीके का स्क्रब पंप। ये है स्क्रबर पंप, सारी चीज़ें स्क्रबर पंप। देन वी हैव इमरजेंसी एस्केप एरिया, इन केस ऑफ फायर ऑन बॉटम प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे, मान लो यहाँ पे फायर हो गया, तो वी कैनॉट गो फ्रॉम दिस पैसेज, तो वी हैव टू यूज दिस वन। मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो चलो ऊपर जाके दिखाई देता हूँ। ये पूरा एनक्लोज स्पेस है, और यहाँ से ऊपर उठकर हम लोगों को जाना है, देख रहे हो वहाँ ऊपर। ये हम लोगों को सबसे टॉप वाले डेक पे ले जाएगा इंजन रूम के। सो दिस इज द खुफिया रास्ता। इसके बाद टर्मिनल अलार्म है यहाँ पे, देन यहाँ पे पंप स्टार्ट करने के लिए पैनल दिए हुए हैं। तो ये आफ ऑफ द शिप, आप मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप अभी हम लोग पानी के अंदर है बेसिकली। ये पानी वाला एरिया है, वो पूरा पानी वाला एरिया है गाइस। ये देख रहे हो, ये हाफ पार्ट ऑफ द शिप है, हाफ पार्ट ऑफ द मेन इंजन। ये देखो देन वी हैव बॉयलर के 2 पंप PM है। ये देख लो, ये 2 OWS से ऑयली वाटर तक होगा कि इनका पानी है कचरा पानी, इट कैन नॉट ओवरफ्लो डायरेक्टली, हैज टू पास थ्रू दीस टूल्स। देन वी हैव ब्रिज पंप, फायर एंड ब्रिज पंप। इन केस पे अगर इनको पंप सी वाटर चाहिए फॉर एनी पर्पस, DWPS वाला वाटर ट्रीटमेंट का ये फिल्टर है। इसके ऊपर हालांकि वीडियो बनाएंगे वो। अभी हम लोग जाएंगे बॉयलर प्लेटफॉर्म पे, आई एम गोइंग टू शो यू द बॉयलर प्लेटफॉर्म। ऑलराइट गाइस, तो ये है बॉयलर। अभी हम लोग इसके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरा फुल फ्लेज्ड व्यू ऑफ और ऑक्सिलरी बॉयलर। बट उससे पहले हम जाएंगे स्टीयरिंग गियर रूम में। ये स्टीयरिंग गियर रूम है,
अगर हम लोगों को मेन इंजन को शिप को अगर हमको पोर्ट स्टारबोर्ड करना है, देन ये है स्टीयरिंग गियर रूम। यही रिस्पॉन्सिबल है पोर्ट स्टारबोर्ड करने के लिए। स्टीयरिंग गियर 2 मोटर दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा रोटरी वेन टाइप स्टीयरिंग गियर है। अगर आपको इसके लिए भी अलग से वीडियो चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। उसके बाद ये है इमरजेंसी फायर पंप। इन केस मेन वाले पंप ना चले, देन वी हैव डेजिग्नेटेड पंप फॉर दिस। बट ये बहुत नीचे है, देख के गान फट रही है भाई। देन वी हैव DWTS का ANU चैम्बर ऑटो न्यूट्रलाइजिंग यूनिट। इसके अंदर लोग सोडियम थाइसल्फेट डालते हैं। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है DWTS। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि DWTS काम कैसे चलता है। ये DWTS का दूसरा चैम्बर, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड जनरेट होता है। इन शॉर्ट इतना समझ लो। अब हम लोग जाएंगे बॉयलर प्लेटफॉर्म पे। अभी देखो, बॉयलर प्लेटफॉर्म से पहले एक और प्लेटफॉर्म है, ये FD फैन का प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है। ये है एक्सपेंशन टैंक, इसके अंदर भी पानी रहता है, जो लाइनर के पास पानी है, मतलब बेसिकली फ्रेश वाटर इसके अंदर स्टोर रहता है सारा। बॉयलर का FD फैन है। देन वी हैव बॉयलर का गेजेस, ये लेवल दिखाते हैं इनके, अगर ऑटो वाला काम नहीं करेगा। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और एंड ये है मेरा बॉयलर। तो दिस इज़ द टॉप मोस्ट व्यू ऑफ बॉयलर। और यहाँ पे ही सारा मेन बर्नर, पायलट बर्नर सारा यहीं पे है, सारा गेम यहीं से होता है। अभी मुझे बॉयलर बंद करना है बेसिकली। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू स्विच ऑफ दिस बर्नर, देन FD फैन बंद करना है, देन वी हैव टू टर्न ऑफ दिस एज वेल। आई डोंट वांट दिस ईदर। तो ये है बॉयलर का मेन पैनल, देख रहे हो, बॉयलर का भी EGB का भी, दोनों। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो हमको दिखेगा, ये देखो, ये है IG इनर्ट गैस जनरेटर रूम, देख रहे हो। ये IG का स्क्रबर टावर है, ये है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट। जितने भी कार्गो टैंक्स हैं उसके अंदर हम लोग इनर्टिंग करते हैं, सो दैट फायर ना हो। उसके लिए हम लोग IG यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस जनरेटर। इसका ऑक्सीजन कंटेंट लेस देन 5% होना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, देन फायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ इट। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आप लोगों को इंजन रूम का टूर दिखा दिया है। ये एक 18 साल पुराना शिप था, दैट टू चाइनीज बिल्ट। ट्राई टू शो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस इंजन रूम। अगर आपको कोई भी डाउट है, देन आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, देन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज पंकज शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।